Okay, dear students, welcome to my channel. We care for you. Today we want to discuss about the trigonometry. So this is chapter number 8 in class 10 maths NCERT. So in trigonometry, this particular word is derived by the Greek letter, and in Greek the meaning of trigonometry is tri stands for 3, gono stands for sides, and metri is derived from the metron. The meaning is measure. So basically we have to measure the three sides, as well as we have to find the relationship between three sides of a triangle and three angles, right? So before going to discuss the further details, we have to keep in our mind that trigonometry only applies for right angled triangle. It means 90 डिग्री होना चाहिए. जो ट्राइंगल 90 डिग्री होते हैं उसमें ही हम ट्रिग्नोमेट्री लगा पाते हैं. वन थिंग. सेकेंड, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. मीन्स अब तक आपने जो ट्राइंगल का चैप्टर किया था, in that particular chapter you can see कि either there is the relationship between the angles or there is the relationship between the sides. लेकिन अब तक ऐसा कोई चैप्टर नहीं आया था कि जिसमें with the there is the relationship between sides and angles. And there is one more important thing. With the help of these angles or sides we can derive each other, right? So let us see the relationships, but it is applicable only for the right angle triangle. So the first part of this trigonometry is called trigonometric ratio. Trigonometric ratio. Ratio of what? Ratio of the sides, right? And in respect of the acute angle. तो किसी भी triangle में, for example right angle triangle है, तो there are two acute angles A and C. So we can determine the trigonometric ratios for A as well as C. So here we want to do for the A only. But let us see few things. In any right angle triangle, in respect to angle A, the opposite side is defined as the perpendicular. Okay, opposite side of what? Opposite side of A. Similarly, opposite side of C will be base. But here we want to write the trigonometric ratios for angle A first. So then for A, perpendicular is BC side, represented as B. Similarly, for this angle A, the base is B, side AB, and hypotenuse will be AC, and hypotenuse stands for H. So in these ratios, perpendicular stands for P, base B, hypotenuse H. Now how can we remember them? Means there is the relationship. So before going to see that relationship, first we need to learn पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. मीन्स देर इज ए पंडित जो कि हर एवरी टाइम हर हर भजता है, हर हर बोलता है. तो इससे हम कैसे याद कर सकते हैं? पंडित का इनिशियल P, बद्री का इनिशियल B, एंड अगेन प्रसाद का इनिशियल P. तो इसको वी कैन राइट लाइक PBP. सिमिलरली हर हर बोल, तो H एंड B. तो यहाँ से आप इस रिलेशनशिप को याद रख सकते हो, PBP अपॉन HHB. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट नाउ द P अपॉन H, ये कहलाता है रेशो. इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विल बी डिफाइंड एज द साइन फॉर एंगल A और एंगल C. बट हियर फॉर एंगल A, द साइन ऑफ A, cos of A, tan of A. And what are these sin, cos, tan? These are the basically trigonometric ratios. So P upon H, B upon H and P upon B. तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. There is another saying that some people have, तो S P H, some people have curly brown hairs turned permanently black. So how it helps to remember? S P H, some people have, तो साइन A की वैल्यू हो गई P upon H. Similarly, curly brown hairs, तो C stands for cos.
कोस ए की वैल्यू हो गई b अपॉन h, राइट. सिमिलरली टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो t stands for tan A and p and b. So here these are the short forms sin, cos, tan, but universally accepted. Always you need to write the sin, cos, tan, cosec, sec and cot for angle A, right? But their exact name is sin. Cosine, again sine have their history, how it derived, but overall sine is sine. Cosine is basically the co of sine, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं फिर cos. द थर्ड वन इज द टेंजेंट, तो टेंजेंट का हम सिर्फ tan लेते हैं, राइट. सिमिलरली कोसेकेंट, तो कोसेकेंट का हम कोसेक लेते हैं बिकॉज कोस ऑलरेडी रिपीटेड है, तो यहाँ पर हम कोसेक लेते हैं. सेकेंट का हम सिर्फ सेक लेते हैं. सिमिलरली कोटेंजेंट, टेंजेंट का कोटेंजेंट का उसका हम सिर्फ कोट लेते हैं, राइट. तो हमने लिख दिया फिर साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट. और ये सब के सब की राइट हैंड साइड कैसे लिखेंगे? द राइट हैंड साइड विल बी रिटन विद द हेल्प ऑफ दीज सेइंग्स like this, means PBP or upon HHB in this particular picture. Here you can see one more important thing, that sin A is P by H, means perpendicular upon hypotenuse, cos base upon hypotenuse, tan perpendicular upon base. तो ये तीन को हम एक सेट बनाते हैं. एंड व्हाट अबाउट द अदर थ्री? कोसेकेंट साइन का अपोजिट होता है, रिवर्स होता है. रिवर्स मीन्स इनवर्स बोल सकते हो. तो कैसे कि कोसेकेंट में हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होता है. सिमिलरली सेकेंड कोसाइन का अपोजिट होता है, मीन्स इनवर्स. तो सेक ए के लिए हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और कोटेंजेंट टेंजेंट का इनवर्स होता है. तो कोट ए इक्वल टू पी अपॉन बी. तो यहाँ पर दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इनसे वी कैन हैव द रिलेशनशिप साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, कोस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, एंड tan A इजिकल टू 1 अपॉन कोट ए. तो आपको ये तीन और इसी से ही डिराइव्ड है, राइट. तो इनको भी आपको याद रखना चाहिए. सम टाइम यू हैव सम वैल्यूज, tan A की पता है, कोट ए की निकालनी है, तो सीधा सीधा 1 अपॉन कर देना है, नथिंग मोर देन दैट. ओके, सो लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स. द फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू दैट इज, सपोज it is given that tan A is equal to 4 by 3. So in this particular picture we have to see 4 by 3. कहता है find all other trigonometric ratios. All other trigonometric means sin A, cos A, sec A, cosec A, cot A. वो बाकी के 5 सब निकालने हैं. For angle A as well as angle C. तो इस बार दोनों एंगल्स के लिए करना है. तो सबसे पहले तो हम A के लिए ही करेंगे. So tan A was 4 by 3 and basic definition was P upon B, perpendicular upon base. तो perpendicular और base की हेल्प से we can write, basically 4 by 3 given था, तो इस 4 और 3 को we can assign in this particular picture. तो there will be 4, there will be 3. अब मुझे थर्ड साइड और निकालनी है पहले. Once I have third side, तो with the help of the sides ratio I can determine the sin, cos, tan, cot and so on. So first of all, how can we do it? This is a right angle triangle, 90 degree, perpendicular and base none. We need to determine the hypotenuse. So use Pythagoras theorem, right? So with the help of the Pythagoras theorem, we can do it. For example, 4 square plus 3 square, और उसका फिर अंडर रूट ले लेना है. तो how can we do it? AC square is equal to 4 square plus 3 square. This becomes 16 plus 9, 25. इसका फिर अंडर रूट ले सकते हैं. द अंडर रूट विल गिव यू द वैल्यूज प्लस माइनस 5. तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो प्लस माइनस 5 आएंगी. बट दीज आर द एक्चुअल डिस्टेंसेज, और एक्चुअल डिस्टेंसेज में यहाँ पर हम सिर्फ प्लस ही कंसिडर कर पाएंगे, माइनस नहीं, निगेटिव नहीं, राइट. सो सिर्फ प्लस 5 हमें यहाँ कंसिडर करना है. तो हियर आई हैव ऑलरेडी रिटन प्लस माइनस, बट नेक्स्ट टाइम वेन एवर वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी वैल्यू, बिकॉज दीज आर द रियल मेजर्स, तो उसको हम सिंपली पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे. तो हैंस नाउ आई हैव माई थर्ड साइड. तो विद द हेल्प ऑफ द थर्ड साइड वी कैन डिटरमाइन द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन ए,
तो साइन ए को वापस से वहीं से याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, तो वहाँ से हम उनको सबको याद कर सकते हैं। और कभी भी इस पिक्चर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरह से। तो साइन ए, कोस ए, टेन ए, और फिर इनका जो रिवर्स होगा इसी को अपोजिट कर दीजिए, कोसेक ए 5/4, कोसे सेक ए 5/3, इट मीन्स 1/1। तो ये मेरा फॉर एंगल ए आ गया। ओके, इसी तरह कैन आई डू फॉर एंगल सी ऑल्सो। तो एंगल सी के लिए भी बिल्कुल इसी तरह निकल जाएगा, जो पहले बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया है, जो पहले परपेंडिकुलर था वो अब बेस हो गया है। एंड नाउ आई कैन राइट ऑल द रिजल्ट्स। तो इस पिक्चर से भी देख सकते हो, विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर, साइन सी के लिए इट मीन्स फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम, सी के लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये। तो इस बार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से देख लीजिए 3/5, 4/5 एंड 3/4। सिमिलरली so 3/5, 4/5 and 3/4. Similarly cosec C 5/3, 5/4, 4/3. Keep in mind sin A is equal to cos C and cos A is equal to sin C. तो ये such kind of relationship हमारे आगे भी काम आएंगे, where we will discuss the complementary angles. तो इनको complementary angles भी बोलते हैं. Now let us take the example number 2. Suppose this is given that गिवन साइन ए इजकल टू 12/13, तो आपको 12/13 गिवन है, राइट, क्योंकि साइन ए तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। अब आपको बेस निकालना है, राइट। तो हाउ कैन वी डिटरमाइन बेस? विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। सिंपली इसका स्क्वायर कर दीजिए माइनस इसका स्क्वायर, तो दैट विल गिव यू 25, तो ए बी बिकम 5, राइट। तो कहता है आप कोस ए बताओ, तो एक बार यदि ये 5 आ गया, इफ दिस इज 5, सो आंसर क्या आना चाहिए? कोस ए। तो कोस ए मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो 5/13। इसी तरह tan ए की वैल्यू 12/5। तो ये बड़ा सिंपल है। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड, राइट। तो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल दैट OP इज गिवन 7, कहता है एंड OQ माइनस PQ। तो OQ क्या है? OQ इज दिस माइनस PQ इजिकल टू 1। तो दिस माइनस दिस गिवन है, तो दिस माइनस दिस, राइट। OQ माइनस PQ इज 1। कहता है डिटरमाइन द साइन Q, एंगल ऑफ Q का साइन निकालना है, एंड कोस Q, राइट। तो कैसे इसको सॉल्व करें? तो कहता है OQ माइनस PQ, तो जो छोटा है उसको मैंने x मान लिया, लेट इट इज x। सो जैसे ही मैंने इसको x माना, तो व्हाट अबाउट OQ? OQ की वैल्यू हो गई 1 + x। तो अब इस ट्राइंगल में सोल्व करते हैं, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 1 + x का स्क्वायर इजिकल टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम, सो x² + 7²। तो इसको एक बार सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है? a + b का होल स्क्वायर, तो दिस बिकम्स 1 + x² + 2 टाइम्स ऑफ x। राइट हैंड साइड x² + 49, x² से x² कैंसिल आउट, 1 को उधर ले जाइए तो 48, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 24, तो x बिकम्स 24। ओके, तो वंस x इजिकल टू 24 मीन्स PQ की वैल्यू 24 है, और PQ की वैल्यू 24 आ गई, तो OQ की वैल्यू विल बी वॉट? OQ वॉज 1 + x, सो दिस विल बिकम 25। तो ये बन गया आपका 25, ये बन गया आपका 24। अब आपको साइन Q निकालना था, तो साइन Q इजिकल टू 7/25। सिमिलरली कोस Q इजिकल टू 24/25। कोई आपसे कहता है कि बाकी अदर्स भी बताइए, तो आप अदर भी बता देंगे, राइट। एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं। नेक्स्ट, ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ NCERT, and in my opinion these are good examples, just you have to take care for the practice, right। tan A ये गिवन है क्वेश्चन की, सपोज tan A इजिकल टू 1/√3। तो सबसे पहले और कहता है फाइंड दिस, तो मुझे साइन A कोस C ये सब निकालने हैं, तो इट मीन्स पहले मुझे बाकी सब पता होने चाहिए, एंड बाकी अदर्स को निकालने के लिए हाउ टू प्रोसीड। तो कभी भी tan A कोट A साइन A कोस A इजिकल टू गिवन समथिंग, तो आपको सबसे पहले स्टेप करना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेट इट इन द डायग्राम। तो जैसे ही मैं पिक्चर में इसको लोकेट करता हूँ, तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने 1 और √3 इसको लिख लिया।
नाउ डिटरमाइन द हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस को निकालने के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम, मीन्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करता हूँ, दिस बिकम्स √4 = 2। मैं पहले ही बोल चुका हूँ प्लस माइनस में सिर्फ मुझे प्लस लेना है, राइट, बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। सो एक बार मेरे पास ट्राइंगल में आ गया तो मेरे पास सारे रेशोज हैं 1 2 3 4। सारे रेशोज को लिखने के लिए केयरफुल्ली ऑलवेज रिमेंबर PBP, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोल, राइट। तो इसकी हेल्प से आप साइन कोस एंड टेन, इसी तरह आप कोसेक सेक एंड कोट इस तरह से याद रख सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। और इसकी हेल्प से जैसे ही आपकी वैल्यूज आई, सब्सटीट्यूट हियर साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। जैसे ही मैंने इसको रखा तो दिस बिकम्स 1/4 प्लस 3/4 = 4/4। बी रिमेंबर यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहले एंगल ए है फिर एंगल सी है, तो एंगल सी ये हुआ। तो जो भी वैल्यू साइन ए की आएगी 1/2, तो कोस सी की वैल्यू भी सेम होगी 1/2। तो साइन ए और कोस सी इक्वल है, कोस ए साइन सी इक्वल है, दोनों की वैल्यूज रखी, तो माई फाइनल आंसर बिकम्स 4/4। ओके, सो इन सच न्यूमेरिकल्स यू हैव टू ऑलवेज कीप इन माइंड, इफ 2 sides are 3 4 तो हाइपोटेन्यूस 5 आएगा, इफ 2 sides are 5 12 तो हाइपोटेन्यूस 13 आएगा, इफ 2 sides are 7 24 तो हाइपोटेन्यूस 5 आएगा। ट्रिग्नोमेट्री के लिए यूजुअली पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए यू मस्ट नो द स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो यदि आपको स्क्वायर याद है तो स्क्वायर रूट्स भी याद हो जाएंगे, अप टू 25 एटलीस्ट 1 से लेके 25 तक के आपको स्क्वायर रूट आने चाहिए, राइट। आज के इस लेक्चर में मैं इतना ही फिनिश रखता हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड द एंगल्स। ओके, सो for more videos, updated videos, you can subscribe my channel We Care For You Academy. Okay, thank you.